कल हमने फॉर्मूला किया था nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, बोलिए क्या फॉर्मूला था, याद है किसी को? मैम an ए रेज टू पावर n sin साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ax plus b n पाई बाय टू। ax plus b plus n pi by 2। ठीक है, अब Yes, देखिए, ma'am. और ऐसे ही सिमिलरली कोस ए एक्स प्लस बी का नेट डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए रेज टू पावर n कोस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय टू। तो आज इन फॉर्मूले की बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं। Suppose we have function sin square x. Let us take it y. Let y is equal to sin square x, and we have to calculate yn, means nth derivative of y. Firstly, we will remove the power. What is the value of sin square x? बोलिए क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर पावर को रिमूव करने के लिए? sin square x is equal to 1 minus cos 2x upon 2. ठीक है, 1 minus cos 2x by 2, और it is equal to 1 by 2 minus 1 by 2 cos 2x. Now taking nth derivative on both sides, yn is equal to nth derivative of 1 by 2. What is the nth derivative of 1 by 2? 0 0. Yes, 1 by 2 constant and nth derivative of cos 2x. ठीक है, now this is equal to 0 minus 1 by 2. What is the value of nth derivative of cos 2x by using this formula? Here compare it with cos ax plus b. A is equal to 2, b is equal to 0. When we compare it with cos of ax plus b, then we have a is equal to 2 and b is equal to 0. So formula of nth derivative of cos 2x is a raised to power n, 2 raised to power n cos ax plus b plus n pi by 2. Clear? So this is equal to minus 2 raised to power n minus 1 cos 2x plus n pi by 2. This is the answer. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी को क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. अब बेटा एग्जाम में ये आपका डिपेंड करता है कि आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपका कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हो, तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हो ये वाला, अगर आपका कम मार्क्स का क्वेश्चन है। बट अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको फिर ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि nth डेरिवेटिव ये कैसे आया। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए जैसे ही आपको सपोज दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन x इंटू साइन 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन है साइन x इंटू साइन 2x, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, so 2 and 1 by 2. Now y is equal to 1 by 2 using the formula 2 sin a sin b. 2 sin a sin b is equal to cos of a minus b minus cos a plus b. Cos of a minus b minus cos a plus b. Is it clear? 2 sin a sin b is equal to cos of a minus b minus cos a plus b. So Yes, ma'am. y is equal to half cos x minus half cos 3x. Now y becomes very simple. Y is equal to 1 by 2 cos x minus 1 by 2 cos. Now taking nth derivative on both sides, we will get yn is equal to half nth derivative of cos x minus half nth derivative of cos 3x. So putting the value of nth derivative of cos x and nth derivative of cos 3x.
this is equal to half. What is the value of nth 1 by derivative? n. Yes, a is equal to 1 and b is equal to 0 here. 1 raised to power n is 1. So cos x plus n pi by 2. Okay, minus 1 by 2. What is the value of nth derivative of cos 3x? Here a is equal to 3, b is equal to 0. So 3 raised to power n cos 3x plus n pi by 2. Okay, this is equal to half cos x plus n pi by 2 minus half 3 raised to power n cos 3x plus n pi by 2. तो ये आपके पास आंसर आ गया। बोलिए, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आपकी एक्सरसाइज के Yes, क्वेश्चंस ma'am. हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। अब जो क्वेश्चन हम कल कर रहे थे उसको देखिए। कल आपके पास था फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू साइन क्यूब x इंटू कोस स्क्वायर x। साइन क्यूब x इंटू कोस स्क्वायर x। तो हमने क्या किया था? मैम दिख नहीं रहा। विजिबल है बेटा? यस मैम। साइन क्यूब x इंटू कोस स्क्वायर x। Now it can be written as sin square x cos square x into sin x। देखिए क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. this is equal to sin x cos x square into sin x। ठीक है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई, मान लीजिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 स्क्वायर से, दैट मीन्स तो 1/4 आपका बाहर आ जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो 1/4 2 sin x cos x होल स्क्वायर, 2 sin x cos x इज sin 2x into sin x। so this is equal to 1/4 sin square 2x into sin x। बोलिए, इतना क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब हम क्या करेंगे, ये एक पावर अभी भी पेंडिंग है हमारे पास साइन स्क्वायर वाली। देखिए पहले ही क्यूब थी, स्क्वायर थी, वो सभी हमने रिमूव करके हमारे पास सिर्फ एक पावर अब 2 वाली बच गई है। अब इसको भी हमें रिमूव करना है, तो हम इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1/4 साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 4x/2। फॉर्मूला क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, 1 Yes, माइनस ma'am. कोस 4x, जितना जितना एंगल यहाँ होता है बेटा उसका डबल हो जाता है यहाँ पर। अगर एंगल 2x है तो यहाँ 4 हो जाएगा, अगर एंगल x होता है तो यहाँ 2x आ जाता है। तो 1 माइनस कोस 4x। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 1/8 माइनस 1/8 कोस 4 सॉरी 1/8 साइन x माइनस 1/8 कोस 4x साइन x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. अब देखिए फिर यहाँ पर आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा इस टर्म के लिए, है ना, क्योंकि ये cos 4x इंटू साइन एक्स है। तो फिर क्या कीजिएगा, अभी y आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आया है, तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो फिर हम यहाँ पर फिर से क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आ गया 1/16 2 cos 4x sin x। फार्मूला क्या लगेगा अब? 2 cos से sin b, sin of sin a plus b minus sin a minus b sin of a plus b, आगे minus sin of a minus b। yes minus sin of a minus b। so this is equal to 1/8 sin x minus 1/16। यहाँ फॉर्मूला आप लगाइए, फॉर्मूला आएगा अब sin of a plus b 5x minus sin a minus b is 3x। so this is equal to 1/8 sin x
माइनस 1/16 साइन 5x प्लस 1/16 साइन 3x। अब आपका y सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Now taking Yes, ma'am. nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। जब आप nth डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/8 nth डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ठीक है, फिर माइनस 1/16 nth डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x, ओके, एंड प्लस 1/16 nth डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। अब आपने सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अब कर लोगे ये इसका फॉर्मूला, इसका 3 फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होने हैं, बस फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. इस टाइप की क्वेश्चंस दैट मींस अब आप कर लोगे ना खुद। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ये आपका एक्सरसाइज का पूरा एक पार्ट बनता है, वो आप मैं आपको बता भी देती हूँ। ये आपका बन रहा है 4th क्वेश्चन कंप्लीट। 4th क्वेश्चन के 9 पार्ट है और वो इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर, ये जो 2 फॉर्मूले हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड है आपके, ठीक है। उसके बाद देखिए अब मैं आपको करवा रही हूँ nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कर रहे हैं। अगर आपको y गिवन है, फंक्शन जो गिवन है आपको वो है e⁻ax इंटू साइन bx प्लस सी। अगर इस टाइप का फंक्शन है, ऐसे ही e⁻ax cos bx प्लस सी, दोनों पार्ट सेम है, एक पार्ट मैं करवा रही हूँ एक आपके लिए। तो y इज इक्वल टू e⁻ax साइन bx प्लस सी है, तो आपने इस y का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव? क्या आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव? प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, e⁻ax एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन bx प्लस सी, फिर प्लस साइन bx प्लस सी एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻ax। इतना क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. दिस इज इक्वल टू e⁻ax, डेरिवेटिव ऑफ साइन bx प्लस सी इज b cos bx प्लस सी Yes, ma'am. प्लस साइन bx प्लस सी, डेरिवेटिव ऑफ e⁻ax e⁻ax। क्लियर है? Yes, ma'am. अब y1 की वैल्यू कितनी है ये आपके पास? y1 कितना है? टेकिंग e⁻ax कॉमन, you have b cos bx plus c plus a sin bx plus c। बोलिए इतना क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो यदि आप इसके अंदर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हो तो आपका क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है। अगर हम y2 निकालते हैं और y2 निकालने के लिए फिर से आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा तो क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हम कुछ हमें शॉर्टकट लेने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। और वो हमने क्या किया है, इस a को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं r cos अल्फा। ओके, ये स्टेप आपको माइंड में रखना है। b इज इक्वल टू r sin अल्फा, पुट a इज इक्वल टू r cos अल्फा एंड b इज इक्वल टू r sin अल्फा। अब इनको आप जब स्केलिंग और एडिंग करोगे, इन दोनों को स्केलिंग और एडिंग करने से आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r स्क्वायर आ जाएगी। Yes, ma'am. ठीक है, और जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, पहले आपने स्केलिंग एडिंग किया तो आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे मींस r sin अल्फा अपॉन r cos अल्फा, तो आपके पास आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू b बाई a, मींस अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a।
बोलिए क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, आपने सब्स्टिट्यूशन किया a इज इक्वल टू आर कोस अल्फा एंड b इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, स्केयरिंग एंड एडिंग वी गेट a स्क्वायर प्लस b, स्केयरिंग और एडिंग करने से r की वैल्यू आपके पास आ गई और डिवाइड करने से आपके पास आ गई अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो अब आपका y1 क्या बन गया? ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपका y1 क्या बन गया? अब देखिए, तो y1 इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax, b की जगह क्या पुट करेंगे? r साइन अल्फा। b की जगह आप क्या पुट करोगे? r साइन अल्फा। तो r साइन अल्फा कोस bx प्लस c प्लस a की जगह हमने क्या पुट करना है? r कोस अल्फा, r कोस अल्फा साइन bx प्लस c। ठीक है, तो जहाँ a और b था हमने वो वैल्यू पुट कर दी। अब आपका ये अंदर फॉर्मूला बन रहा है, r तो कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ गया ना, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो मैं यहाँ से इस r को बाहर पुश कर देती हूँ। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. अब ये फॉर्मूला देखिए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन रहा है? साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि y1 की ये वैल्यू आ रही है। बोलो इतना यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखिए y1 इज इक्वल टू आर ई की पावर ए एक्स साइन अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। अब r की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, अल्फा की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, तो r और अल्फा यहाँ पर पुट कर दीजिए। जब r और अल्फा आप पुट करोगे तो r की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, ये है ना आपके पास। ठीक है, r की वैल्यू ये है, फिर e रेज टू पावर ax है, फिर उसके बाद साइन bx प्लस c प्लस अल्फा, अल्फा कितना था? tan इनवर्स b बाई a। बोलो y1 क्लियर हो गया सबको? y1 की वैल्यू कैसे दिखती है? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. आप ध्यान से देखना, जब आप y2 निकालोगे तो आपका क्या आएगा? y1 आपके पास आ चुका है। सिमिलरली जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2/2। ठीक है, 2/2 आ जाएगा, ये सेम, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 1 tan इनवर्स b बाई ए आया है y1 में, और फिर y2 में आ जाएगा 2 tan इनवर्स b अपॉन a। आपका पास y2 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/2, फिर e की ax, फिर साइन bx प्लस c प्लस 2 tan इनवर्स b बाई a। ठीक, जब आप y3 निकालोगे तो क्या आएगा? फिर बताइए y3 में क्या आएगा? A square plus B square की power 3/2 e ax साइन e की power ax sin bracket bx plus c plus 3 tan inverse b upon a। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू पावर n/2 2 and minus 1. n/2 minus 1/2. n/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू पावर n/2 e रेज टू पावर ax sin bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b बाय a। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। Yes ma'am. Yes, ma'am. जब आप nth डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पर n आ जाएगा, ठीक है, n/2 आ जाएगा, बाकी सारा सेम, और यहाँ पर आ जाएगा n tan इनवर्स b बाई a, बाकी सारा आपका सेम रहेगा। तो ऐसे ये आपने निकाला e रेज टू पावर ax sin bx प्लस c का। ऐसे ही जब e रेज टू पावर ax आप cos bx प्लस c का आपने करके देखना है खुद। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले फिर आपके पास बन गए हैं। इसमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए आप। बोलिए, कोई डाउट है इसमें? मैम दीप्ति बोल रही है, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है।
वो आपकी कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, कोई बात नहीं। मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो आपकी कनेक्शन में प्रॉब्लम है कुछ। तो अब देखो ये आपके फिर दो फॉर्मूले बन गए हैं, तो दो फॉर्मूले मैं लिख रही हूँ। nth डेरिवेटिव ऑफ e raised to power ax sin bx plus c is equal to a square plus b square raised to power n by 2, फिर e raised to power ax, ठीक है, और फिर क्या था बेटा, sin bx plus c plus n tan inverse b upon a। क्लियर है? ऐसे यस ही मैम। ऐसे ही आपके पास आ जाएगा e raised to power ax cos bx plus c का। इसका फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र रेज टू पावर n बाई 2 ई की ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए। ये दो फॉर्मूले आपके पास आ गए, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब इसके बेस पर आपके पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, मैं आपको एक पार्ट करवाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है e raised to power 3x sin square 2x, ये फंक्शन गिवन है। अब देखो आपको ये तो पता चल जाता है ये किस फॉर्म का क्वेश्चन बनेगा, e raised to power ax sin bx plus c टाइप का बनेगा ये, लेकिन पहले हमें पावर रिमूव करनी है। sin square 2x है यहाँ पर, तो sin square 2x को कैसे लिखोगे, 1 माइनस cos 4x by 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हाफ ई की 3x माइनस हाफ ई की 3x कोस 4x। अब ये y आपका पावर से रिमूव हो चुका है, ये आपका सिंपल फॉर्म में आ चुका है। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। अब nth डेरिवेटिव ले लीजिए, yn इज इक्वल टू हाफ nth डेरिवेटिव ऑफ e की 3x माइनस हाफ nth डेरिवेटिव ऑफ e की 3x इंटू कोस 4x। बोलो इतना क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए nth डेरिवेटिव ऑफ e की 3x क्या आएगा, बोलो क्या आएगा nth डेरिवेटिव? ये तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 इंटू ई की पावर 3x। सेकंड डेरिवेटिव 9 इंटू 9 e3, नो नो 9 नहीं बोलोगे, मैंने क्या बोला आपको, यस 3 के स्क्वायर। y3 क्या आएगा थर्ड डेरिवेटिव, 3 क्यूब ई की पावर 3x। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अब nth डेरिवेटिव? 3 raised to power n e3x। बोलिए क्लियर है इतना? Yes ma'am। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सेकंड वाला जो हमने लिखा था ऊपर। बोलिए Yes ma'am। कंपेयर करो a इज इक्वल टू कितना है 3, e की x होता है, यहाँ हमारे e की 3x है, a की वैल्यू 3 cos bx प्लस c, b कितना है 4 और c कितना है आपका 0। तो यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 16 25। यस 25 रेज टू पावर n by 2, ओके, इंटू e रेज टू पावर ax यानी cos 4x प्लस n tan इनवर्स b by a, b कितना है 4 और a कितना है 3, 4/3। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। क्लियर है सबको? यस 25 रेज टू पावर n by 2, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर की पावर n by 2 यानी कि 5 रेज टू पावर n आ जाएगा यहाँ पर। तो सिर्फ इसको आप चेंज कर देना 5 की पावर n, बाकी सारा आपका सेम रहेगा। ये आंसर आ गया।
बोलो क्लियर है? Yes, ma'am. मैम तो ये आपका एक्सरसाइज का, अब देखिए एक्सरसाइज के आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये सारे क्वेश्चंस डन हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, दैट मींस ये एक्सरसाइज आपकी फोर्थ ए एंड फोर्थ बी ऑलमोस्ट डन है आपकी। सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। पहले मैंने आपको ए एक्स प्लस बी टाइप की करवाए थे। देखिए पहले हमने किया था इस टाइप के फंक्शन का nth डेरिवेटिव, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर मैंने आपको log वाले करवाए थे, याद है। फिर थर्ड नंबर पर हमने किया था ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, 3 टाइप हो गई। फिर फोर्थ नंबर पे हमने किया साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी वाले फंक्शन के nth डेरिवेटिव। और फिफ्थ नंबर पर हमने किया ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, इस टाइप के फंक्शन के डेरिवेटिव। तो ये 5 टाइप्स के बेस पर आपके 5 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं। इज इट क्लियर? Sure. ठीक यस है, मैम तो ये अब क्वेश्चंस आपने करने हैं। फोर्थ ए और फोर्थ बी मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैंने फोर्थ सी पर मूव करना है। ओके, मैं ये नहीं कह रही आपको कि फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 9th पार्ट है तो 9th की 9th आप पूरे कंप्लीट कीजिए, लेकिन